हाँ तो चलो we continue with SOT solutions of triangle and this is the last topic of your solutions of triangle. The last topic from which you can expect questions in both JEE as well as in ISICMI. Okay, so here we have till now we have discussed a lot of things related to triangles and all properties of triangle. We have discussed the properties of triangle, solutions of triangles, questions based on that, a lot of formulas we have discussed, and now and last class we have also discussed the PYQs. I think GK sir also took your class for different things like different problem solving sessions. Actually, he has taken, and last class I took one of the JEE PYQs, basically JEE PYQ session, and now we move to the next topic that is about polygons. Okay, polygons and geometry based on polygons. Okay, polygons and geometry based on polygons. So far, give the heading. Basically, what we are going to discuss is basically we are going to discuss the entire structure of polygon. Okay, entire structure of polygon. What is a regular polygon? Mainly we'll focus on regular polygons only because a lot of questions are there based on this regular polygon only. Hardly will find questions on irregular polygons. So we will mostly focus on what is the regular polygon part. Okay. Certain things you must have also learned in your junior classes. We will recall some of them actually. Okay, so that is basically things related to your polygon structures of polygons, properties of polygons. Okay, certain formulas were also there you must have learned in your junior classes. Okay, so let us start off with the polygons. Polygons, first of all, some points based on a regular polygon you may consider. First, we discuss these regular polygons only. Okay, we start off with the regular polygon. We start off with the regular polygon. Facts related to this regular polygon. Now here regular polygon means over here you will find that the sides and the angles are equal. In this polygon, the sides and the angles are always equal. In a regular polygon is such a polygon where the sides and angles of those polygons are equal. Sides are also equal, polygons angles are also equal. Okay. You have any polygons like say you have done polygon. Basically polygon, in a polygon n the number of sides must be at least 3. Otherwise you can't say it to be a polygon. Okay, the number of sides is less than or equal to 3 basically. It can be more, but it must be at least 3. Okay, likewise over here, let's say you want to say there are various types of polygons. The simplest polygon is what? Triangle. It's a polygon with 3 sides. Okay, in a regular polygon you have the sides and the angles to be equal. So you may write down as a first point that the number 1 that sides and angles are equal over here. In a regular polygon, sides and angles are equal. Sides and angles are equal in a regular polygon. This is property number 1. What else we can say from here? The sum of all the angles. In fact, this is actually true for all types of polygons. The sum of all interior angles of a polygon is actually n minus 2 times pi. Sum of, we have the next formula. Actually, this is formula only. You may consider that the second one is sum of the interior angles of a polygon. Sum of interior angles. Sum of interior angles of a polygon is actually n minus 2 times pi. This is one more formula. Okay, one more formula actually. Sum of the interior angles. You know all these actually. You have done this already in your junior classes. But let's verify this thing. You must have seen in triangle what we have. In triangle, the sum of the angles. Sum of the angles is what? Pi 180 degrees. Sum of the angles is what? Pi. Sum of all these angles is pi. So basically over here what happens with triangle is we have 3 sides. Obviously over here n stands for the sides. Okay, n stands for the sides, number of sides actually. So over here we have 3 sides. So for 3 sides we have 3 minus 2 times pi. So that's why you're getting the sum to be pi actually. Okay, if you just see this pattern over here, let's say for triangle you have 3 sides.
For triangle, you have 3 sides, so you're getting 3 minus 2 into pi. This is just what we are doing, is we are just simply verifying the formula. We are simply verifying the formula over here. Let's say for a quadrilateral, let's say any quadrilateral you are taking, okay? Any quadrilateral you are taking. So what happens over there? Basically, their sum is equal to 360, isn't it? Their sum is equal to 360. So that 360 can be obtained. That means basically their sum is actually 2 pi. That is obtained in what process? Basically, we are doing 4 minus 2 and we are getting this 4 minus 2 times pi, that is 2 pi. That is the formula basically. Okay, na? As you increase the number of sides, you can see a general pattern getting generated over here. Pi. For 3 sides, we have pi. Okay? For 3 sides, we have pi. For 4 sides, we have 2 pi, and so on. Okay, na? For 3 sides, we have pi. See that pattern over here. 3 sides, for 3 sides, we are getting pi. Sum of angles to be pi. For 4 sides, the sum of angles is 2 pi. Okay? Means for 3 sides, you are getting 1 pi. That 1 is nothing but basically 3 minus 2. Okay, na? 3 minus 2. Similarly, for 4 sides, basically, you are getting 2 pi. This 2 is nothing but 4 minus 2. So that is why you're getting 4 minus 2 pi. Okay, this is nothing but 4 minus 2 pi. 4 minus 2 times pi, and you're getting this thing. Likewise, you see the formulas over here. So in general, for n-gon, basically, for n number of sides, we have the sum of interior angles will be 2 less than the number of sides, that is n minus 2 times pi. Understanding this pattern, what I'm trying to say. Okay, na? For n number of sides, we have n minus 2 times pi. This is the pattern for the sum of all angles, sum of interior angles of a regular polygon is basically n minus 2 times pi. This is common for all polygons. Basically, the sum of interior angles of a polygon is always n minus 2 times pi. Okay? Sum of interior angles of a regular polygon is actually n minus 2 times pi. Okay? Acha, so let's see some more things over here. Acha, so what else we can see? Interior angle. If we want to find out each of these interior angles, okay? मान लो कोई polygon है. Suppose we have a polygon over here and you are asked to find out the interior angles of that polygon. Okay. You're asked to find out the interior angles of this polygon. You have a polygon of this type and you need all the interior angles. Individually, you want the interior angles. So you must be having some general formula for this interior angles of a regular polygon actually. Okay. Interior angles of the regular polygon. What is that? How do we find out this thing first of all? Achha, see from here. If you just see from here, this is the center. Let's say this is the center. Okay. This is your center. And if you see over here that this much distance, if you see, okay, this much distance, if you see this much distance, okay. So this much distance will be how much? This much distance is actually R, capital R. This much distance will be capital R. Why this is capital R? If you draw this much distance is capital R, the reason being if you draw a circle, then this will become a circumcircle, right? This will become a circumcircle. And you know that the radius of the circumcircle is nothing but simply capital R. So this much is the capital R. So as this thing, this is also capital R. Okay, just consider this thing. So this much is capital R. Okay, na? R is what? R is basically the circumradius. R is the circumradius. R is the circumradius. Okay. R is the circumradius you're getting from here. So you can see that each of these, if you join these points now, you're getting a triangle over here. A triangle is getting generated, isn't it? A triangle is getting generated over here, and let's say this angle is, let's say, theta. This angle is, let's say, theta. Acha, if this is R, then this is also R. If this is R, if this is the radius, then this is also the radius. You know, this is also the radius. So these two sides are equal. These two sides are equal for this triangle. These two sides are equal. Okay. So if these two sides are equal, their opposite angles are also equal. Opposite angle means these two sides are also equal. This is X and let's say this is X.
ठीक है. So we can use the angle sum property. If you use the angle sum property, what I'll get from here? If you use the angle sum property, what will I get from here? X plus theta, x plus 2x plus theta. 2x plus theta is equal to how much? 180, isn't it? 2x plus theta is equal to 180. So what is 2x? 2x will be 180 minus theta. 2x will be 180 minus theta. ठीक है. 180 बोलो तो pi basically. pi minus theta. ठीक है. Pi minus theta. This we are getting 2x to be pi minus theta. Now understand the concept from here. If we know theta, if we can find out theta, then we'll get what is x from here, because x is nothing but what is x? X is nothing but x will be pi minus theta upon 2. ठीक है ना? Pi minus theta upon 2. You'll get what is x from here. Or basically 2x. Basically what we want the interior angles. इतना तक तो 2x है ना. All these angles we want is basically these are all interior angles. Clear? These are all interior angles. ये पूरा आपका 2x बनाएगा. This entire thing will give you 2x actually. So what is the logic? If I know theta, you can find out what is this angle. Okay? Because right now we don't know theta. Now what is this theta? Theta भी यहां से मिल जाएगा. How will you find out theta from here? Theta is what? Theta is a central angle. Theta is what? Theta is a central angle. The angle which is getting created at the center. Suppose you have a general polygon. Let's say you have a general polygon. Let's say I am considering a general polygon. Okay? In general, an n-gon I am considering. N-gon. Likewise, you have n number of sides and all. Okay? N number of sides are there and so on. I am considering a n-gon actually, a regular n-gon. Clear है? I am considering one regular n-gon. अच्छा, यहाँ पे देखो. For instance, if we have, this is the center of that regular n-gon. Initially, I am considering this to be the center of the n-gon actually. अच्छा, यहाँ से एक circumscribed circle you can draw. You can draw one circumscribed circle, isn't it? From here you can draw one circumscribed circle. एक चीज यहाँ से देखो. इसको ऐसे लिख दो. And so on, this will continue. Okay, ऐसा sides कुछ है, so this will continue. The sides will continue. ऐसे करके you are drawing a circumcircle over here. ठीक है? You are drawing a circumcircle. So this is an n-gon. There are various types of sides over here. तो ये मैंने just ऐसे in general I have considered this thing just to determine, just to find out what is this theta. Just to find out what is this theta. So that's why I have drawn this thing in general. अब यहां से समझो theta, how much is this theta subtended at center? माने this central angle. We call this theta to be nothing but central angle. जो center में होगा, that is actually your theta. वो क्या होगा? What is the central angle? अच्छा, यहां से देखो, यहां से एक मान लो ये वाला साइड क्या होगा? If you drop one line over here, so this is actually what? ये वाला लाइन क्या होगा? This is R, capital R. ये तो capital R होगा, ये भी capital R होगा. This is also capital R, है कि नहीं? Circumscribed circle है. This is a circumscribed circle, so this is also R, this is also R, capital R basically, isn't it? So basically what we need is, we need this theta. ये सेंट्रल एंगल हमें चाहिए. दिस इज द सेंट्रल एंगल. ठीक है? अच्छा, टोटल कितना है? टोटल इज व्हाट? 2 पाई. टोटल विल बी 2 पाई. तो देयर विल बी टोटल, एज देयर आर n number of triangles, sorry, n sides are there, so gradually you will have n number of triangles over here. Likewise over here, यहां पे देखो, फॉर इंस्टेंस इनिशियली अगर मान लो, फॉर इंस्टेंस मान लो अगर पेंटागन होता, पेंटागन माने सपोज 5 साइड्स आर देयर. ओके, बना लो एक पेंटागन बना लो. 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ पेंटागन बना लिया. एग्जैक्ट पेंटागन तो हुआ नहीं, मतलब रेगुलर पेंटागन एक्चुअली. ठीक है, रेगुलर पेंटागन कैसे बनाए? 1 2 3 4 5 6. अच्छा चलो 6 साइड बना लो, जो भी है. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, इफ यू ड्रॉ वन सर्कल, और if you draw the diagonals, sorry not circle, if you draw the diagonals over here, ऐसे ऐसे करके जो triangles बनेंगे ना, ये तो सब मतलब सिमेट्री होगा. all these will be symmetry, है ना? ये कितना साइड का था? 1 2 3 4 5 6, 6 साइड का था. all total we have considered 6 sides. okay, all total we have considered 6 sides over here. अच्छा,
अगर 6 साइड या लिया ना तो देखो टोटल हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर गेटिंग क्रिएटेड, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ट्राइंगल्स आर गेटिंग क्रिएटेड। ठीक है, तो टोटल ऐसे करके 6 ट्राइंगल्स विल गेट क्रिएटेड ओवर हियर, सिमेट्री करके ऐसे 6 ट्राइंगल्स विल गेट क्रिएटेड इन दिस पॉलीगन। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल एंगल हमें चाहिए, ये सेंट्रल एंगल, तो टोटल कितना आएगा, टोटल दिस इज 360, ये टोटल गोल जो आएगा ये टोटल 360 आएगा। तो फॉर n gons, basically for 6 triangles, or for 6 sides, basically 6 sides of this polygons, we are getting 6 triangles. So for n side you will have n triangles, n number of triangles, है कि नहीं? For n triangles, for n sides you will have n number of triangles. So in case of n number of triangles, this central angle will be how much? मतलब total तो 2 pi है, so for only for one triangle you will have this central angle to be how much? 2 pi by n, 360 by n. क्लियर है सबको? This is 2 pi by n, central angle will be 2 pi by n, total is 2 pi. तो for one triangle total is 2 pi, means total जो triangle आएगा, total for n number of triangles we have 2 pi. ठीक है, तो we want for one triangle, so this will be how much? 2 pi by n. क्लियर है? So you are getting one more thing is basically theta you are getting from here. तो theta is what? The central angle. तो यहां से एक और चीज आ गया, theta is how much? आपको सेंट्रल एंगल मिल गया ना। नंबर 3 इज द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल थीटा, सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 2 पाई बाई एन और 360 डिग्री बाई एन, जो भी लिखना है। तो यहां से देखो 2x इज इक्वल टू, नाउ वी नो थीटा, सो नाउ वी नो थीटा, सो 2x इज इक्वल टू हाउ मच? पाई माइनस 2 पाई बाई एन। वी नो थीटा, इजंट इट? थीटा इज हाउ मच? पाई माइनस 2 पाई, ये थीटा आ गया आपका, एक ट्राइंगल का ये थीटा आ गया। सो दिस इज एक्चुअली 2 पाई माइनस 2 पाई बाई एन। ठीक है, पाई माइनस 2 पाई बाई एन। इसको अगर सिंप्लीफाई किया ना तो क्या आएगा यहां से? इफ यू सिंप्लीफाई दिस थिंग, सो टेक पाई कॉमन, सो हियर वी हैव 1 माइनस 2 अपॉन एन। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो यू आर गेटिंग n माइनस 2 बाई एन, n माइनस 2 बाई एन। सो पाई टाइम्स n माइनस 2 बाई एन, व्हाट इज दिस? दिस इज द इंटीरियर एंगल। ये आपका आएगा इंटीरियर एंगल, ये टोटल आएगा आपका हर एक इंटीरियर एंगल, ऑल दीज इंटीरियर एंगल्स यू आर गेटिंग, ये आएगा आपका पाई टाइम्स n माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो नंबर 4 पॉइंट यहां से लिखो, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल विल बी हाउ मच? इंटीरियर एंगल विल बी n minus 2 by, sorry, n minus 2 by n times pi, n minus 2 by n times pi। ये क्लियर है ना हमने क्या किया? इज दिस क्लियर व्हाट वी हैव डन सो फार? सेंट्रल एंगल निकाला, इंटीरियर एंगल भी निकाला। ठीक है, ऑल दीज आर इंटीरियर एंगल्स। ये सब इंटीरियर एंगल जो भी है पॉलीगन का, इंटीरियर एंगल इज बेसिकली n minus 2 upon n into pi। n is what? The number of sides, basically number of sides of that polygon। yeah, all these are workings, don't get confused over here। आपको तो खाली पॉइंट्स ही रिमेंबर, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द पॉइंट्स ओनली। ओके, लेकिन समझो मतलब कैसे आ रहा है वो भी मतलब समझो, अंडरस्टैंड दैट एज वेल, डोंट जस्ट ब्लाइंडली मेमोराइज। ठीक है ना, चले आगे, समझ गए नहीं? फोर पॉइंट्स आर क्लियर, चले आगे। चलो, इंटीरियर एंगल्स आ गया, इंटीरियर एंगल यू हैव गॉट, सेंट्रल एंगल यू हैव गॉट। ठीक है, what else? Now you are knowing that r is the circumradius also, circumradius। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स बोलो, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे? सपोज यू हैव एन एन गॉन, ठीक है, यू हैव एन एन गॉन, सपोज you have n gone, तो number of diagonals will be how much? Number of diagonals of a regular polygon कितना आएगा? The formula is given by n times, याद रखना है, n into n minus 3 divided by 2,
बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं जेई पे इस पे। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज गिवन बाय n टाइम्स n minus 3 डिवाइडेड बाय 2। हाउ कम? मान लो इस पॉलीगन को, मान लो सपोज वी हैव दिस वर्टेक्स, लेट्स से you have this vertex, ये diagonals कैसे बनेगा? How will you create the diagonals? By joining this to this vertex, joining this to this vertex, or this to this vertex. Now suppose if you consider this vertex, suppose you consider this vertex, you cannot take this vertex, you cannot take this vertex, neither you cannot take this vertex, ठीक है ना? ये तीनों vertex छोड़ के you can connect this and this to create the diagonals. So for one vertex basically how many choices you're getting? n minus 3 choices, ठीक है ना? ये तीनों छोड़ के you have n minus 3 choices, है कि नहीं? ये तीनों vertex छोड़ के all these three vertex, leaving out all these three vertex, you're getting 3 choices, ठीक है? So how many? You're getting n minus 3 choices, ठीक है ना? n minus 3 choices. So what will you get from here? You have n times n minus 3 divided by 2. Ab why we have multiplied with n? Because there are total n number of choices, sorry, n number of diagonals, basically n number of triangles, ठीक है? n number of sides, basically n number of sides are there, n number of sides, so we are multiplying with n times n minus 3 by 2. Now why we have divided by 2? Why we have divided by 2? We have divided by 2, the reason being, if you draw one diagonal over here, likewise in this way, while counting you will count this twice. So that to avoid that counting twice, you are dividing by 2, because we need to count exactly once. ये जब काउंट करोगे तो ये डायगोनल 2 बार काउंट हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारे चीज मतलब वी डिस्कस इन परमुटेशन कॉम्बिनेशन। जब काउंट करोगे तो ये दो चीज मतलब ये जो डायगोनल आएगा आपका, दिस डायगोनल विल बी काउंटेड ट्वाइस। सो टू अवॉइड दैट बेसिकली वी आर डिवाइडिंग बाय 2, बिकॉज वी नीड टू काउंट इट एग्जैक्टली वंस। हर एक डायगोनल 2 बार काउंट हो जाएगा, सो वी आर डिवाइडिंग बाय 2। तो n इंटू n माइनस 3 divided by 2 is the formula for number of diagonals. यही आपको चीज याद रखना है। Number of diagonals is n into n minus 3 divided by 2. ठीक है? ये तो फिलहाल अभी all these we are discussing basically the things what you have learned already, you know so far. These things which I am just recalling some things over here which you need to know in order to proceed further. अभी मेन चीज तो आया ही नहीं है, तो this is just the, consider this to be the starter actually. मेन चीज तो आया ही नहीं है, ठीक है ना? So how many things we are getting from here? We have found out what is the sum of the interior angles, ठीक है? Sum of the interior angles, central angle we have got. Individually we have found out what is the interior angle of the regular polygon, and number of diagonals also we have found out of a regular polygon. So what else we can found? What else we can find out? Exterior angles, let's say exterior angles, sum of the exterior angles. What is the sum of the exterior angles of a regular polygon? The sum of the exterior angles is always 2 pi. It's always 360 degrees. No matter what, कोई भी polygon आ जाए, regular हो कि irregular, what, any type of polygons, ठीक है? Sum of the exterior angles of a polygons, sum of the exterior angle, any type of polygon, exterior angle of a polygon, polygon means any type of polygon. It can be a regular polygon or irregular polygon. Right now we are discussing regular polygons, but I hope you can know what is an irregular polygon. In a regular polygon, the sides and angles are all equal, okay? But for any type of polygon you consider, any type of polygon, the exterior angle of a polygon is always 2 pi. Exterior angle of a polygon is always 2 pi. So sum of the exterior angle of a polygon of any type is actually 2 pi. It is always 360 degree, 2 pi or 360 degree. Okay. You can see one visualization over here that let's take one polygon and see the exterior angle. If you analyze the exterior angles, if you see in this diagram, if you see in this polygon, you can see the exterior angles. I have extended the sides and I have created the exterior angle. सभी exterior angle को अगर आप उठाएंगे, you take all of these exterior angle, you consider this to be as vectors. Let's say you take this, okay, pick this up, इसको ऐसे घुमाया, फिर इसको ऐसे घुमाया, इसको ऐसे घुमाया, इसको ऐसे घुमाया और इसको ऐसे घुमाया.
तो ऐसे करते हुए आप if you just take out all of these, you will see that you will find that this is actually getting created. This is a circle is getting generated over here. If you take out all of the exterior angles, a circle will get generated, and that's the case basically. So we are having a circle here. So obviously this total circle will be of 360 degrees. So of course over here the sum of the exterior angle of any polygon हमेशा वो that is actually 2 pi होता है. कोई भी polygon हो, कोई भी type का हो, regular हो, irregular हो, it is always 260 degree. Exterior angle है always 260 degrees. Now over here in this context, as I have explained, that we are actually focusing on, our main target is actually to learn the regular polygon. Questions are based on regular polygons mostly. 99% or 95% questions are based on regular polygons. So over here in this, throughout this chapter, we will learn what is the regular polygons. Okay. Okay, so next we have the concept of circumcircle and incircle. Okay. In certain books, you can also find the word circumscribed polygon or inscribed polygon. It's more or less the difference between the terminologies, more or less the same thing. Circumscribed polygon or circumscribed circle are two different things. Circumscribed circle in terms of circle when we are referring, so it's circumscribed circle. Okay, this red circle. So since we are here, we are actually referring circumscribed circle and circumcircle and incircle. Okay. And in terms of polygon, let's say if you are using the word circumcircle, then this red color circle is the circumcircle. Okay, this red color circle is the circumcircle. And with respect to this red circle, this polygon is an inscribed polygon. Okay, so you can use any of these terminologies. The thing is, here I will use circumcircle and incircle. Okay. Circumcircle means this red circle is the circumcircle and this blue circle is the incircle, which is inside the polygon. So it is incircle. Okay. And this red circle is the circumscribed circle. Okay. So this is for how many? This is basically 5 sides. This is a pentagon actually. 1, 2, 3, 4, 5. Total 5 sides are there. So for pentagon, this is the diagram actually. Similarly, this is hexagon. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 sides are there. So over here you can see that this is the criteria. This is the case. Okay, the case of this is how this will look actually. Circumscribed circle and incircle will look. Now the thing is, how do I find out the radius of circumcircle and the radius of incircle? Just like the case what we have did previously for triangles. We also want what is circumcircle and what is incircle. This is the simple idea, simple case. I want the radius of circumcircle and incircle. That is capital R. It will be same denoted by capital R and small r. But the thing is, let's see in general what will happen. In general, if you have a circumscribed polygon and or circumscribed circle, circumcircle and incircle, what will be the radius in general? If you have a polygon of n sides, likewise you can see, right? You can see that it can change, the radius can change based on the polygons, right? Based on the number of sides of the polygons, isn't it? The radius can change over here. Okay. We talk about this radius. यहाँ से अगर कुछ ड्रॉ करोगे तो ये रेडियस कितना आएगा, ठीक है? This radius is what we want actually. तो in general let us see ना, in general कोई polygon ले लो, उसका आप analyze करो उसको. In general कोई polygon ले लो. Okay, so in general we see what is the circumradius. Circumradius कैसे निकाले, ठीक है? Radius of the circle जो भी है, बाहर वाला सर्कल का भी रेडियस निकालेंगे और अंदर वाला सर्कल का भी रेडियस निकालेंगे. तो हियर आई हैव कंसीडर दिस डायग्राम, ठीक है? थोड़ा फ्री हैंड डायग्राम है. इन जनरल ये कोई पॉलीगन है, दैट इज पॉलीगन ऑफ n साइड्स. ये कंटिन्यू होता ही जाएगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, ठीक है ना? ये पॉलीगन हो मतलब ये कंटिन्यू होता ही जाएगा, ये कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको देता रहेगा. ये पॉलीगन साइड्स भी आपको वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स आपको देता रहेगा. तो दिस इज एक्चुअली an n sided polygon we have considered. Okay, so the thing is over here we have this side, we have this yellow circle. ये जो बाहर वाला सर्कल है, yellow circle is basically the circumcircle, and this blue circle, inside वाला circle, inside circle is basically the incircle. मतलब ये पॉलीगन, ये पिंक वाला पॉलीगन है, ठीक है? ये चलता ही जाएगा. दिस इज n-gon एक्चुअली, n-gon, ठीक है? तो दिस, ये हमें जो ढूंढना है, दैट इज एक्चुअली द रेडियस. रेडियस ऑफ व्हाट?
रेडियस ऑफ अंदर वाला सर्कल एंड रेडियस ऑफ बाहर वाला सर्कल, द रेडियस ऑफ द इनसाइड सर्कल इन सर्कल एंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल. नाउ द थिंग इज हाउ डू यू फाइंड आउट द रेडियस इन जनरल. एक तो वैसे तो आप देख सकते हैं ना कि वेरियस टाइप्स ऑफ, मैंने बोला जस्ट अभी, तो वेरियस टाइप्स ऑफ साइड्स के लिए ये चेंज होता जाएगा, रेडियस चेंज होता जाएगा. तो यहां से इन जनरल हमने ये क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया. ये वाला जो साइड लेंथ है ये तो आपका रेडियस है, इस वाले को मान लो ये वाला रेडियस है, ये आपका जो सर्कम सर्कल का रेडियस है उसको मान लो आप आर, कैपिटल आर मान लो, इसको कैपिटल आर मान लो. ठीक है, दिस इज कैपिटल आर. और ये वाला जो सर्कल का रेडियस है, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये तो परपेंडिकुलर है, ये वाला सर्कल का रेडियस मतलब अंदर वाला सर्कल जो इंस्क्राइब सर्कल है उसको स्मॉल आर मान लो, जो रेडियस को स्मॉल आर मान लो. ठीक है, क्लियर है. अच्छा, यहां से यहां तक लेंथ कितना आएगा, यहां से यहां तक, यहां से मान लो इसको कोई नाम दे दो, मतलब ओ ए बी नाम दिया. ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, डी नाम दे दो. यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ए बी का लेंथ मान लो कुछ, ए बी का लेंथ पूरा मान लो, दिस इज लेंथ ए. सपोज यहां से यहां तक पूरा लेंथ मान लिया, दिस इज एक्चुअली ए. यू कंसिडर द लेंथ ऑफ ए बी टू बी ए, स्मॉल ए. ठीक है. अच्छा, तो नेक्स्ट व्हाट यू डू, अच्छा इसका एंगल कितना आएगा, माइंडेड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ये हमें ढूंढना है, व्हाट इज आर एंड व्हाट इज स्मॉल आर. दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे. व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ये तो परपेंडिकुलर है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है. ये एंगल कितना है, टोटल पूरा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर विल बी हाउ मच, 2 पाई बाई एन. ये 2 पाई बाई एन है, तो 2 पाई बाई एन हुआ तो दिस इज पाई बाई एन एंड दिस इज पाई बाई एन, है कि नहीं. ये पाई बाई एन एंड दिस इज पाई बाई एन. ओके, क्लियर विद दिस. सो ओवर हियर ये अगर पाई बाई एन हुआ तो आपको दिख गया होगा ये परपेंडिकुलर है, सो यू कैन से दैट इफ दिस इज ए, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, तो दिस इज एक्चुअली ए बाई 2 एंड दिस इज ए बाई 2. ठीक है, आप बेसिक ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर दीजिए, नथिंग एल्स. यू हैव दिस एंगल, यू हैव दिस एंगल, ये तो पाई बाई एन है. इस वाले ट्राइंगल को उठाओ, मतलब ये वाला, मतलब इसको अगर बाहर निकाल के अगर दिखाए ना, यू टेक आउट दिस आउटसाइड एंड सी, ये अगर ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे, दिस इज एक्चुअली 90 एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज एक्चुअली द, ये तो थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है ना. थीटा अगर ये हुआ तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर. क्लियर है. ये अगर थीटा है मान लो, ये वाला है आपका पाई बाई एन, ये आपका पाई बाई एन है, इसका सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर, दिस इज एक्चुअली ए बाई 2. ठीक है, और बेस कितना है, बेस कितना है, बेस इज एक्चुअली स्मॉल आर. ये आपका ट्राइंगल हो जाएगा, है कि नहीं, और ये आपका कैपिटल आर हो जाएगा. अब मान लो यहां से आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर, यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर. इस वाले ट्राइंगल से मान लो आपको आर ढूंढना है, स्मॉल आर आपको यूटिलाइज करना है. ठीक है, स्मॉल आर आपको यूटिलाइज करना है, तो एक काम करो, ये आर तो बेस में और हमारे पास परपेंडिकुलर है. ठीक है, आर तो बेस में हमारे पास परपेंडिकुलर है, थीटा भी है, तो हम tan थीटा लगा दे क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू tan पाई बाई एन. ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू tan पाई बाई एन. तो यहां से r आ जाएगा, व्हाट इज r, r इज बेसिकली a बाई 2 टाइम्स, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा, a बाई 2 टाइम्स cot पाई बाई एन. दिस विल बी r, इजंट इट, ये r आ जाएगा आपका, सिंपल है. और मान लो सिमिलरली इसी ट्राइंगल से अगर आपको सिमिलरली फ्रॉम दिस ट्राइंगल ओनली यू वांट टू फाइंड आउट कैपिटल आर, तो आर, ये जो आर है ना, ये कैपिटल आर इज बेसिकली द हाइपोटेन्यूज, इट्स द हाइपोटेन्यूज एंड यू वांट टू यूटिलाइज दिस हाइपोटेन्यूज. तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, we want to use this, we don't need this small r now, we want the hypotenuse and we want the perpendicular. तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा साइन पाई बाई एन, साइन पाई बाई एन. तो साइन पाई बाई एन बोले तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा, a बाई 2 टाइम्स कोसेक, कोसेक पाई बाई एन, a बाई 2 टाइम्स कोसेक पाई बाई एन. तो ये r आ गया आपका, कैपिटल R आ गया, और ये स्मॉल r आ गया. तो वैल्यूज आ गया ना. तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, माइंडेड व्हाट इज n, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स.
है ना, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ साइड्स. तो एज पर डिपेंडिंग ऑन द पॉलीगन, शेप एंड साइज ऑफ द पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, हेक्सागन हो कि कुछ भी हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टागन, कुछ भी हो, कोई भी पॉलीगन हो, n इज इक्वल टू उस वाले, मान लो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड है 6, तो n इज इक्वल टू 6 डाल दोगे तो स्मॉल r का वैल्यू आ जाएगा यहां से. ठीक है, क्लियर है. कॉन्वेक्स पॉलीगन्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, ये भी दोनों टर्मिनोलॉजीज होंगे जो यूज होगा फ्रीक्वेंटली, विल यूज दिस. ठीक है, टू टर्म्स वी माइट यूज दिस फ्रीक्वेंटली, convex and concave polygon. So what is convex polygon? Each of these interior angle जो होगा polygon में, that will be less than 180. जो interior angles होगा, ये जो सब interior angles होगा, आपको दिखने में लगेगा all these are actually less than 180. The interior angles of the polygon will be less than 180. ठीक है, so in this case we have the polygon to be said to be as convex polygon. And over here all the diagonals, ये जो diagonals आप connect करेंगे, the diagonals will be inside the polygon. बाहर कोई ऐसा diagonal नहीं मिलेगा आपको, नहीं तो बाहर भी कुछ diagonal आपको नहीं मिलेगा. All the diagonals will lie inside the polygon. All the diagonals will lie inside the polygon. ठीक है, बाहर कोई भी diagonal आपको नहीं मिलेगा. But in case of concave polygon, at least one angle of the polygon is more than 180 degrees. At least one angle of the polygon is more than 180 degrees. What is the meaning of this thing? At least one of the angle is more than 180 degrees. ये जो एंगल होगा ना, at least one, मान लो ये वाला एंगल, ये आपको दिख गया होगा in this diagonal, in this polygon, you must have seen, ये जो एंगल है, this angle is more than 180, ये आपको दिख गया होगा. नहीं तो ऐसे समझ लो, यू आर एक्सटेंडिंग दिस, इसको एक्सटेंड कर दो. ठीक है, इसको अगर एक्सटेंड किया ना, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 180. तो टोटल एंगल कितना आएगा, 180 प्लस समथिंग, यू हैव टू गो 180 प्लस समथिंग. तो ऑब्वियसली दिस इज मोर देन 180, है ना, ये मोर देन 180 तो होगा. तो एटलीस्ट वन एंगल ऑफ द पॉलीगन इज मोर देन 180, देन विल से दिस टू बी अ कॉनकेव पॉलीगन. तो इस वाले पॉलीगन में आपको डायगोनल जो होगा, ये डायगोनल समटाइम्स डायगोनल बाहर भी मिल सकता है आपको. सम पोर्शन ऑफ द डायगोनल्स, मान लो ऐसे करके अगर जो डायगोनल हुआ, तो ऐसे डायगोनल्स आपको बाहर भी मिल सकता है. बाहर मतलब डायगोनल बाहर मतलब पॉलीगन के बाहर आपको डायगोनल्स मिल सकते हैं. ठीक है, तो समटाइम्स दीज टू टर्मिनोलॉजीज आर आल्सो यूज्ड इन द क्वेश्चंस. तो आपको ये ध्यान देने, यू हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है, डन, चले आगे. लिख लो, इसको लिख लो. अच्छा, एक क्वेश्चन मान लो, एक क्वेश्चन कर लो पहले, then we'll move to the next concept. Sum of the radii of the inscribed and the circumscribed circle for n-sided polygon. So you must have seen what they have asked for basically. Sum of the radii, जो दोनों रेडियाई आपका आएगा ना, जो दोनों रेडियाई मतलब स्मॉल r प्लस कैपिटल R, तो उसका सम, उसका जो सम, they are asking for the sum of this thing. Such a simple question. दोनों का सम. ठीक है, दोनों का सम हमें चाहिए. आपको फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला, फ्रॉम द फॉर्मूला इटसेल्फ यू कैन फाइंड आउट, है ना. व्हाट इज स्मॉल r? स्मॉल r इज बेसिकली a by 2 times cot pi by n. And what is capital R? Capital R will be a by 2 times cosec pi by n. ठीक लिखा ना, a by 2 times, एक आएगा आपका a by 2 times, small r will be a by 2 times cot pi by n, and capital R will be a by 2 times cosec pi by n. तो ये कहा, ये कितना आएगा, यहां से a by 2 यहां से कॉमन ले लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो. यस, वी जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई दिस थिंग. सो इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो कितना आएगा, cot a by 2 कॉमन ले लो, दिस इज वी आर गेटिंग cot pi by n प्लस cosec pi by n. ठीक है, प्लस cosec pi by n. सो दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग इज बेसिकली a by 2 times, अच्छा, cot pi by n प्लस cosec pi by n. साइन एंड कॉस में ब्रेक कर दो, साइन एंड कॉस में ब्रेक किया तो कितना आएगा,
हाउ मच यू गेटिंग फ्रॉम योर 1 बाई ये कॉट आएगा कॉस है कॉस पाई बाई एन डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई एन cos pi by n divided by sin pi by n plus 1 upon sin pi by n. तो LCM is how much? sin pi by n. LCM is sin pi by n. ऊपर आ जाएगा 1 plus cos pi by n. 1 plus cos pi by n. तो a by 2 times ऊपर आ जाएगा देखो 1 plus cos theta. 1 plus cos theta is 2 cos square और 1 plus cos 2 theta is what? 2 cos square theta है कि नहीं? 1 plus cos 2 theta is what? 2 cos square theta. ठीक है 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. तो वहां 2 थीटा होता तो उस पार 2 थीटा बाई 2 होता. ठीक है दैट्स थीटा. तो अगर थीटा होता तो थीटा बाई 2 होता. तो हियर वी हैव 1 plus cos theta. 1 plus cos theta will be 2 cos square theta by 2. So here we have 1 plus cos theta. So gradually this will become 2 cos square theta by 2. ये क्लियर है ये वाला कैलकुलेशन. रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स एज मच एज पॉसिबल. अच्छा sin theta sin 2 theta 2 sin theta cos theta sin theta 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 है ना. sin 2 theta is what 2 sin theta cos theta. So sin theta will be 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 in terms of half angle. तो यहां पे sin theta है so gradually this will become 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. क्लियर है. तो कैंसिल आउट हो गया 2 2 गया cos theta by this is also going off. So what are we left out with? ये वाला. So we are left out with a by 2 times cot pi by 2n. Clear है. Very simple question we have considered. Understand this thing very carefully. This is a very important concept actually. And although not so many questions have been derived because this is actually advanced concept and normally it's there in normally questions have been asked over here from ISI and mostly in the Olympiads. So till now there has been very few JEE questions from this section. ठीक है देखो length of diagonals. We see the length of diagonals in a regular polygon. Okay, we see the length of diagonals in a regular polygon. What is the length of diagonal in a regular polygon? What is the meaning of this thing? First of all, you create one polygon. To see the geometry actually to find out the length of diagonals. एक रेगुलर पॉलीगन आप मान लीजिए n मान लीजिए n नंबर ऑफ साइड्स है कुछ भी बना लो यहां से. एक पहले काम करते हैं सर्कल बना लेते हैं. सर्कल है एक. ठीक है बिगर सर्कल आई एम क्रिएटिंग एंड यू क्रिएट द पॉलीगन एंड सो ऑन. ऐसे करके मैंने एक पॉलीगन मैंने बना लिया. ठीक है and let us mark the things necessary things what we need. इसका ज्योमेट्री हम देखेंगे. concept is what to find out the diagonals, length of the diagonals in this regular polygon. We are asked to find out this thing. ठीक है अच्छा तो what will I do next? मार्क कर लो पॉइंट्स को भी मार्क कर लो. यहाँ पे ये वाला कुछ मान लो ये वाला ये सेंटर है. दिस इज द सेंटर. ठीक है ये वाला आपका कैपिटल आर बनेगा. दिस इज कैपिटल आर. ये कैपिटल आर बनेगा. दिस इज कैपिटल आर एंड दिस इज कैपिटल आर. ये भी आपका कैपिटल आर बनेगा.
ठीक है, ये सब कैपिटल आर है। एंड मान लो वर्टिसेस भी कुछ है, शायद दिस वर्टेक्स इज A0, A1, A2, A3, A4, likewise I'm just taking the names of these vertices, ठीक है ना। तो मान लो यही वाला जो पॉलीगन आएगा आपके पास, ये जो पॉलीगन आएगा, इन दिस पॉलीगन व्हाट आई हैव इज दिस मच लेंथ इज, ये वाला मान लो, ये वाला टोटल एंगल कितना आएगा 2π/n, टोटल एंगल विल बी हाउ मच 2π/n, ठीक है ना। टोटल एंगल विल बी हाउ मच 2π/n। अच्छा, अगर 2π/n हुआ तो यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, अगर कर दिया, इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ओवर हियर, ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस मच एंगल विल बिकम π/n एंड दिस मच एंगल विल आल्सो बिकम π/n। टोटल एंगल है, हमें पता है टोटल सेंट्रल एंगल इज हाउ मच 2π/n, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है। I have given the names to this vertex actually. अच्छा, what is important you need to see from here, हमें क्या चाहिए टोटल, वी नो दैट टोटल देयर आर n साइड्स, और मान लो ये वाला अगर साइड लेंथ अगर a हुआ, ये टोटल साइड लेंथ अगर a हुआ, if this side length is a, so this is a/2, this will be how much a/2, है ना। टोटल अगर a हुआ तो this will be a/2, और ये भी a/2 आएगा आपके पास। तो यू नो दिस थिंग, यू नो दिस π/n, ये अगर मान लो सेंटर है o, ठीक है, कैन वी फाइंड आउट व्हाट इज A0 A1, ये वाला लेंथ क्या हमें मिल जाएगा A0 A1। अब बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, यू जस्ट ट्राई टू अप्लाई द बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। व्हाट इज द बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, ये वाला अगर थीटा है तो सामने वाला साइड है परपेंडिकुलर, दिस इज बेसिकली a/2 इस वाले ट्राइंगल पे, तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री लगा दो। सो दिस इज a/2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन π/n, है ना। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, क्लियर। तो ये आपका मिल जाएगा आपका साइन थीटा। तो ऑब्वियसली इफ यू सॉल्व फॉर ए, इफ यू सॉल्व फॉर ए, हाउ मच इज ए, ये तो ये वाला साइड लेंथ हमें चाहिए ना, ए इज हाउ मच, ए विल बी हाउ मच 2r sin π/n, 2r sin π/n, क्लियर है ना, a विल बी 2r sin π/n, एक रिलेशन आ गया, ये वाला साइड आ गया देखो 2r sin π/n, क्लियर है, 2r sin π/n। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड आ गया आपके पास। तो लेंथ ऑफ साइड बोले तो A0 A1, you are getting this thing, you have got this thing, A0 A1 is equal to 2r sin π/n, 2r sin π/n मिल गया आपको यहां से। अच्छा, what else we can find actually, और क्या यहां से हम ढूंढ पाएंगे। अच्छा, यहां से देखो हमें क्या चाहिए, व्हाट वी वांट एक्चुअली, वी वांट द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, वी वांट द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। डायगोनल कैसे बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा, डायगोनल से ऑब्टेन, मान लो ये वाला अगर ऐसे अगर ज्वाइन कर दिया, A0 को A1 से ज्वाइन कर दिया तो ये एक डायगोनल बन जाएगा, है ना। इफ आई ज्वाइन A0 विथ A1 दिस वे, A0 विथ A1, तो ऐसे करके डायगोनल बन जाएगा आपके पास, है कि नहीं, क्लियर है आपको। तो ऐसे ही हम ज्वाइन कर देंगे, वी विल ज्वाइन A0 एंड A2, A0 एंड A2, ये वाला अगर ज्वाइन कर देंगे तो क्या आएगा वो सिचुएशन हम देखेंगे, ठीक है। वी विल ज्वाइन A0 एंड A2, वी विल सी द सिचुएशन फ्रॉम देयर, क्लियर है। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। एक और डायग्राम बना लेते हैं फॉर कन्वीनियंस, लेट्स ड्रॉ वन मोर डायग्राम। मान लो ये वाला साइड था A0 A1 A2 A3, ठीक है। What we know this length A0 A1, this length is how much, this length is basically 2r sin π/n, ये हमें मिल गया, this is 2r sin π/n, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, we want A0 A2,
तो यहां से ज्वाइन कर दिया, अगर यहां से ज्वाइन कर दिया तो क्या आएगा, ए नॉट ए टू, ये एक डायगोनल बन जाएगा ए नॉट ए टू। ये वाला जो लेंथ है ना, दिस लेंथ वी वांट, ए नॉट ए टू, ठीक है, ए नॉट ए टू। सिमिलरली ये वाला जब आ जाएगा, देन विल आल्सो जॉइन ए नॉट ए थ्री एंड फाइंड आउट दिस लेंथ आल्सो consecutively, basically as we are basically finding out this length ए नॉट ए टू। सिमिलरली ये अगर आ जाएगा तो उसके बाद ए नॉट ए थ्री को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ए नॉट ए फोर को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ऐसे करते हुए एक पैटर्न आ जाएगा। तो ए नॉट ए टू, a naught a2, suppose for instance if I consider, let's say this a naught a2, let's say this much is ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए x है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए x है। अच्छा यहाँ पे वही वाला चीज, मतलब यहाँ पे सेंटर होगा, यहाँ पे सेंटर होगा, और यहाँ पे अगर ज्वाइन कर दोगे तो ट्राइंगल बन जाएगा, यहाँ पे अगर ज्वाइन कर दोगे तो ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, ये r है, ये भी r है, ठीक है, रेडियस है बेसिकली, यहां पर अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये भी ट्राइंगल बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा फिर देखो यहां से, ये अगर देख लिया ना, यहां से एक बार देखो, फिर यहां से अगर परपेंडिकुलर, इफ यू जस्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ओवर हियर, ठीक है, यहां से अगर परपेंडिकुलर ये भी अगर ड्रॉप कर दिया ना, ठीक है, तो हमें ना ये एंगल हमें चाहिए, ये अगर आप अगर देखोगे तो ये वाला एंगल जो बनेगा, दिस एंगल विच विल गेट क्रिएटेड, दिस इज एक्चुअली, वी आर डिवाइडिंग इनटू टू ट्राइंगल्स, वी आर डिवाइडिंग इनटू टू ट्राइंगल्स। इसको अगर पूरा देखोगे ना, ये अगर ये पूरा दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, पहले क्या था, पहले वी हैड ओनली वन ट्राइंगल, दिस वाज ओनली वन ट्राइंगल, उसके लिए पाई बाई एन पूरा एंगल था 2 पाई बाई एन, द टोटल एंगल वाज बेसिकली 2 पाई बाई एन, ठीक है ना, टोटल एंगल वाज 2 पाई बाई एन, तो उसको ब्रेक कर दिया पाई बाई एन और पाई बाई एन में। यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे वी आर हैविंग टू ट्राइंगल्स, ये एक प्रकार से हमने एक ट्राइंगल को, मतलब वी हैव डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स में अगर ब्रेक कर दिए तो ऑब्वियसली दिस मच एंगल वुड हैव बीन 2 पाई बाई एन एंड दिस मच एंगल वुड हैव बीन 2 पाई बाई एन, बिकॉज टोटल एंगल बन जाता, क्योंकि दो ट्राइंगल थे, एक ट्राइंगल के लिए 2 पाई बाई एन था, तो दो ट्राइंगल के लिए 4 पाई बाई एन होता, isn't it? For two triangles this would have been 4 pi by n, तो अगर ब्रेक कर दिया तो 2 pi by n and 2 pi by n, क्लियर है? ओके, फाइन विद दिस। ये एंगल्स हमें चाहिए, ये एंगल्स आपके बन जाएंगे 2 pi by n and 2 pi by n इंडिविजुअली। तो ये साइड लेंथ हमने कंसिडर किया था, दिस साइड लेंथ वाज x, ओके, दिस साइड लेंथ व्हिच वी हैव कंसिडर्ड वाज x, सो दिस विल बी x by 2, ये x by 2 हो जाएगा और ये भी x by 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वही सेम वाला बेसिक ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर दो, वी वांट द बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। अगर बेसिक ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई किया तो क्या आएगा यहां से, ऑब्वियसली यू विल गेट x बाई टू, ये अगर थीटा है, मान लो ये वाला थीटा है, ठीक है, ये सामने वाला साइड क्या आएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये सामने वाला साइड आएगा परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज, ओके, सो यू आर गेटिंग x बाई टू अपॉन r, x बाई टू अपॉन r is equal to how much, sin 2 pi by n, angle is how much, sin 2 pi by n, theta is how much, 2 pi by n। तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, x will be 2r sin 2 pi by n, 2r sin 2 pi by n। what is x? X is this thing, x is the thing which we want, a naught a2 is basically 2r sin 2 pi by n, 2r sin 2 pi by n। ये क्लियर है सबको? पहले बोलो, is this clear to you what we have done? ये अगर क्लियर नहीं हुआ तो देन आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। अच्छा मान लो, तो ये बन गया आपका ए नॉट ए टू, ये लेंथ आ गया आपका, ये डायगोनल का लेंथ आ गया है ना, ये डायगोनल का लेंथ आ गया। तो सिमिलरली अगर ए नॉट ए थ्री को अगर ज्वाइन करोगे, ए नॉट ए थ्री को अगर ज्वाइन करोगे, इफ यू ज्वाइन दिस थिंग ए नॉट ए थ्री, तो उसका लेंथ क्या आएगा, उसका लेंथ क्या आएगा वो भी देख लेते हैं, थोड़ा प्रूफ से देख लो, प्रूफ से ही देख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा प्रूफ से देख लेते हैं। ए नॉट ए थ्री का अगर हमें लेंथ चाहिए, यू वांट द लेंथ ऑफ ए नॉट ए थ्री, एक काम करते,
डायग्राम से डायग्राम बना लेते हैं और एक डायग्राम बना लो, ठीक है ना। तो इफ आई कनेक्ट, जस्ट फॉर इंस्टेंस इफ आई ज्वाइन दिस A0 A3, ऐसे करके अगर ज्वाइन कर दिया A0 A3 को, ठीक है, डायग्राम बहुत बहुत बड़ा बन गया। तो सिमिलरली यू विल हैव वन मोर ट्राइंगल, इसको अगर उसी या मतलब सेम चीज से अगर देखा जाए तो ये अगर सेंटर मान लो, ठीक है, ये बन जाएगा आपका एक और ट्राइंगल बन जाएगा, एक और ट्राइंगल बन जाएगा। तो एंगल कितना होगा, अगर मान लो ये वाला परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप कर दिया तो ये एंगल कितना होगा, ये हमें चाहिए, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। इन वन ट्राइंगल, रिमेंबर इन वन ट्राइंगल वी आर हैविंग द एंगल टू बी 2 pi by n. So here we have three triangles. Three triangles can be formed basically over here. अगर A3 तक देखा जाए तो 3 triangles can be formed, ठीक है ना। वन ट्राइंगल के लिए हमारे पास था 2 pi by n. For one triangle we would have got 3 pi by n. तो यहां पर अगर देखा जाए तो तीनों ट्राइंगल for this we can have 3 triangles. अगर A0 से A3 तक देखा जाए तो आपके पास 3 ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है। तो for three triangles the angles, the total angle will be how much, 2 pi by n plus 2 pi by n plus 2 pi by n. याद है, दो ट्राइंगल के लिए था 2 pi by n plus 2 pi by n, एक ट्राइंगल के लिए था 2 pi by n, दो ट्राइंगल के लिए था 2 pi by n plus 2 pi by n, 4 pi by n था। फिर तीन ट्राइंगल के लिए यहां पे तीन ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो, फॉर हियर यू कैन ड्रॉ 3 ट्राइंगल्स। तो जो टोटल एंगल होगा ना, टोटल एंगल विल बी 2 pi by n plus 2 pi by n plus 2 pi by n, that is 6 pi by n. The total angle will be 6 pi by n. तो टोटल एंगल अगर 6 pi by n हुआ, ये जो टोटल एंगल अगर 6 pi by n हुआ, तो यहां से यहां तक this much will be how much, 3 pi by n. टोटल एंगल इज 6 pi by n. तो यहां से यहां तक 3 pi by n, this much is 3 pi by n, this much is also 3 pi by n, ठीक है। सिमिलरली फॉर इंस्टेंस इफ आई कंसिडर दिस साइड टू बी x, ये मान लो ये वाला साइड अगर x मान लिया तो ये परपेंडिकुलर है, सो दिस विल बी x/2। तो वही सेम लॉजिक, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। नाउ व्हाट आई वांट A0 A3, लेट्स से दिस इज x, A0 A3, लेट्स से दिस इज x। तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री मान लो, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री क्या आएगा, ये वाला ट्राइंगल उठाओ, टेक दिस ट्राइंगल, ये थीटा है, थीटा का सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय ये वाला क्या है, ये वाला, दिस इज r, दिस इज ऑल्सो r। तो थीटा वाला, थीटा इज, दिस इज थीटा, उसके सामने वाला साइड इज परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेन्यूज। सो ऑब्वियसली वी हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sin 2 pi by n, sin 3 pi by n, ठीक है ना, sin 3 pi by n. So obviously you are getting x is equal to 2r sin 3 pi by n, 2r sin 3 pi by n. So basically x is what, A0 A3. So A0 A3 is what you're getting is 2r sin 3 pi by n. So the length of this diagonal you're getting to be 2r sin 3 pi by n. अब देखो क्या क्या आ गया, ये वाला ये भी आ गया। How much is this length? How much is this length? A0 A1. How much was A0 A1? A0 A1 was 2r sin pi by n. ये वाला साइड कितना था, 2r sin pi by n, है कि नहीं। ये वाला साइड भी आ गया, देखो A1 A2 कितना था, A1 A2, ये वाला सॉरी A1 A0 A2, ये वाला A0 A2, what was A0 A2, ये वाला साइड 2r sin 2 pi by n, है ना। A0 A2 was 2r sin 2 pi by n, ये वाला डायगोनल का लेंथ आ गया, ठीक है ना। सिमिलरली यू आर फाइंडिंग आउट A0 A3 is 2r sin 3 pi by n and so on. मान लो अगर किसी दिन अगर मान लो ये वाला अगर लेंथ पूछ दिया, व्हाट इज A0 A4, तो क्या होगा 2r sin 4 pi by n, ठीक है ना। एकदम स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट किया, ये वाला लेंथ कितना था 2r sin pi by n,
तो एक के लिए मतलब एक के लिए सिर्फ एक था, ये वाला साइड था, ये वाला साइड लेंथ भी आ गया। साइड लेंथ इज हाउ मच? साइड लेंथ इज बेसिकली 2r sin pi by n, 2r sin pi by n। साइड लेंथ भी आ गया, लेंथ ऑफ डायगोनल आ गया, लेंथ ऑफ डायगोनल आ गया, ये वाला लेंथ ऑफ डायगोनल आ गया, ये वाला लेंथ कितना होगा? दिस लेंथ इज बेसिकली 2r sin 2 pi by n। ठीक है, ये वाला लेंथ था 2r sin 2 pi by n। फिर ये वाला लेंथ ऑफ डायगोनल आ गया, दैट इज 2r sin 3 pi by n। तो a0 o a4, मान लो अगर किसी दिन पूछ दिया a0 a4, a0 a4 विल बी हाउ मच? a0 से लेके a4 तक, दैट विल बी 2r sin 4 pi by n। n is what? Number of sides of the polygon। ये क्लियर है सबको? दिस सिमेट्री इज क्लियर, दिस प्रोसीडियर इज क्लियर। ओके, जल्दी बोलो, ये क्लियर है कि नहीं? प्रोसेस इज क्लियर और नॉट? ये सिमेट्री हमने जनरेट किया। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन द एग्जामिनेशन? इन द एग्जामिनेशन ऐसे करके तो दिया नहीं जाएगा। मान लो यहां पे तो मैंने डाल दिया a0 a1 a2 a3, how will you know what is which side, which corner is a0 a0 and so on, a0 a1 a2? how will you know? if they give the hexagon, let's say xyz करके, ऐसा मतलब xyz z1 z2 ऐसे करके कुछ दे दिया, मान लो x1 x2 x3 ऐसे करके दे दिया, मान लो a0 is not given, यही वाला चीज, यही वाला notations will be given, how will you understand this thing? तो इन जनरल हाउ व्हाट इज द केस बेसिकली? ये तो मैंने बोला ना a0 a3। अगर देखा जाए यहां पे देखो, देयर इज वन ट्रिक टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर दिस थिंग। ये देखो a0 a3, a0 a3, यहां पे 0 आ गया, यहां पे 3 आ गया, तो 0 - 3 और 3 - 0 बेसिकली डिफरेंस 3 आ गया। तो यहां पे देखो 3 आ गया, यहां पे 3 आ गया। ये मान लो ये वाला डिफरेंस देखो, a0 a4 4 - 0, ये 4 आ गया, यहां पे 4 आ गया। ठीक है, अच्छा फिर अगर मान लो किसी दिन अगर बोला a2 a4 निकालो, what is a2 a4? a2 a4 will be how much? 2r sin 4 - 2, that is 2 pi by n। ठीक है ना, ये भी डिफरेंस 2 आएगा, तो 2r sin 2 pi by n आ गया। so this is one trick to remember। now the twist to this theory is that, or this trick is basically, in the examination you won't be getting a0 a1 this type of notations। they might give xyz or z1 z2 z3 z4, मान लो दे दिया तो a0 is not given, only a1 a2 a3 is given, ऐसा ही कुछ दे दिया, रैंडम कुछ मतलब नोटेशंस दे दिया। then how will you understand how to use which formula? ध्यान से देखना, एक चीज यहां से देखो, एक चीज यहां से देखो, ये अगर a0 a2 होता तो फॉर्मूला क्या होता? a0 a2, व्हाट वाज द फॉर्मूला? व्हाट वाज द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल? a0 a2, 2r तो 2r आएगा, फिर साइन, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? 2, तो 2 पाई बाई n आएगा। ये चीज देखो, a0 a2 एंड a2 a4 आर द सेम। ठीक है भाई, कोई नहीं, मतलब डिफरेंस, ये डिफरेंस 2 - 0 था, लेकिन for instance, if this is given, xy is given or something, any other notations is given other than a0 a2, you cannot observe the difference from there. How will you apply? Which formula? Which formula you will apply? Now over here there comes one more technique to learn this। what is that? मान लो a0 a2 है, ठीक है, a0 a2 कहां पे हमने प्रूफ किया, कहां पे? ये वाला a0 a2, ये वाला डायगोनल था ना, this was the diagonal a0 a2, this was the diagonal a0 a2, है ना, this was the diagonal a0 a2, a0 a2 के बीच में दोनों साइड आ गए 1 2, so here comes 2 pi by n। a0 a2 के बीच में दो साइड आ गया तो यू आर गेटिंग 2 pi by n। अच्छा मान लो ये वाला साइड ले लो, a0 a3, बीच में कितना आ गया? a0 a3, a0 a3 तो बीच में आ गया 1 2 3, so you are getting 3 pi by n। तो बीच में, यू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, बीच में जितना भी साइड आएगा वही इसका वैल्यू होगा। ये 2r रहेगा,
साइन साइन रहेगा, अंदर वाला क्या होगा, पाई बाई एन विल बिकम पाई बाई एन। ये 2 3 4 क्या आएगा, जो बीच में जो साइड आएगा वही आएगा। ठीक है, क्लियर है। ए नॉट ए थ्री, ए नॉट ए थ्री, ये वाला बीच में कितना आ गया, 1 2 3, 3 साइड्स आर कमिंग, राइट डाउन 3 ओवर हियर। इज दिस क्लियर? शॉर्ट ट्रिक इज क्लियर, हाउ विल यू रिमेंबर? बीच में जितना भी साइड आएगा आप उसी को लिखेंगे। ये क्लियर हुआ तो बोलना। तो यही था लेंथ ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर पॉलीगन। अब देखो यही वाला कंसेप्ट, द सेम कंसेप्ट, दिस क्वेश्चन मींस दिस थिंग ओनली वाज आस्क्ड इन आईएसआई एंट्रेंस 2010 यूजीबी। देखो क्वेश्चन क्या था, दिस वाज आस्क्ड इन B stat, I think B math. This was asked in B math. ISI B math 2010. Subjective UGB paper. ठीक है। अच्छा, see this question. Consider a regular heptagon, polygon of 7 equal sides and equal angles. Okay, ये सब नाम देके दिया हुआ है। The first thing is basically, first thing they have asked to prove this thing. What they have asked to prove is 1 upon sine pi by 7. अगर छोटा दिख रहा है आपको, मैं लिख देता हूं, 1 upon sine pi by 7. They have asked to prove that 1 upon sine pi by 7 is equal to 1 upon sine 3 pi by 7. 3 pi by 7 ki 2 pi by 7? 2 pi by 7. First was 2 pi by 7. This was 2 pi by 7. And this is 1 upon sine 3 pi by 7. ठीक है, this is given. अच्छा, तो what you have to find is, what you have to find, we have to prove this first. First इसको prove करेंगे, फिर दूसरे पार्ट वाला है जो using a और otherwise show that 1 upon ag is equal to 1 upon a plus 1 upon ae. ठीक है, तो यही वाला पॉलीगन का कंसेप्ट है, रेगुलर पॉलीगन। डायगोनल्स भी गिवन है, आपको दिख गया होगा, दीज आर ऑल डायगोनल्स। अच्छा, तो यहां से क्या करें, पहले तो फर्स्ट वाला पार्ट को प्रूव करेंगे, फर्स्ट पार्ट, एंड फर्स्ट पार्ट इज लॉट इजियर टू प्रूव। ठीक है, वेरी इजी टू प्रूव कंपैरेटिवली। इसी पे थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे तो यही से प्रूव कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट ऑफ द प्रूफ फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑल्सो, if you want you can just do some sort of manipulation, some sort of simplification to prove this one. The first proof is very basic, एकदम फालतू सा प्रूफ दिया है फर्स्ट वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। ये क्या आएगा, इसको अगर मान लो राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो आएगा साइन 2 पाई बाई 7, 2 पाई बाई 7 इंटू साइन 3 पाई बाई 7। ठीक है, ये चीज आपको प्रूव करना है। दिस इज बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, द फर्स्ट पार्ट इज वेरी बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। तो डिनोमिनेटर पे आएगा साइन 3 पाई बाई 7। ठीक है, साइन 3 पाई बाई 7 प्लस साइन 2 पाई बाई 7। ओके, सो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, if you cross multiply, so what will you have from here? If you cross multiply, you will have this sine into sine 2 pi by 7 into sine 3 pi by 7 is equal to sine 3 pi by 7 into sine pi by 7। ठीक है, स्पेस कम पड़ जाएगा, नीचे लिखते साइन pi by 7 times sine 3 pi by 7 plus sine pi by 7 into sine 2 pi by 7। ठीक है, अच्छा, फिर now what will I do? Multiply with 2 on both sides, multiply with 2 on both sides, multiply with 2 on both sides। ठीक है, multiply with 2 on both sides। क्यों करें, लेफ्ट वाला आ गया 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, how much is 2 sin a sin b? 2 sin a sin b, do you all remember the formula, special formula, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b माने cos, cos a minus b minus cos a plus b। याद रखना फॉर्मूला, भूल मत जाना, cos a minus b minus cos a plus b है कि नहीं, ठीक बोला ना, cos a minus b minus cos a plus b, तो लिख दो cos a minus b। अच्छा, क्या होगा यहां से, cos a minus b अगर करोगे, अच्छा, तो दिस इज a,
एंड दिस इज बी, 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी बोले तो 2 पाई बाई 7 माइनस 3 पाई बाई 7 माने पाई बाई 7, ठीक है, पाई बाई 7। एक माइनस भी आएगा, लेकिन कॉस है तो कॉस इज देयर, दिस विल सिंपली गेट कैंसिल आउट। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। कॉस ए माइनस बी आएगा, कॉस ए माइनस बी, ये वाला आएगा, ये वाला फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, दैट इज बेसिकली 2 पाई बाई 7 माइनस 3 पाई बाई 7, दैट इज पाई बाई 7 माइनस पाई बाई 7 which is the same as pi by 7, और माइनस कॉस ए प्लस बी, दिस प्लस दिस, दैट इज 5 पाई बाई 7। ये आपका आएगा लेफ्ट हैंड साइड, दिस विल बिकम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, दिस विल बिकम लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, फिर देखो राइट हैंड साइड पे, देखो राइट हैंड साइड पे क्या आता, आपको दिखाना है कि ये वाला ट्रू है, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू एक्चुअली, प्रूव, और बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, सिंपल मैनिपुलेशन। राइट हैंड साइड पे सिमिलरली इसको अगर ब्रेक किया तो क्या आएगा, 2 साइन पाई बाई 7 इंटू साइन 3 पाई बाई 7, ठीक है, 2 साइन पाई बाई 7 इंटू साइन 3 पाई बाई 7 कितना आएगा, वही वाला कॉस पाई बाई 7 इंटू पाई बाई 7 साइन पाई बाई 7 इंटू साइन 3 पाई बाई 7। अच्छा, तो कितना आएगा यहां से, पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस सॉरी पाई बाई 7 माइनस 3 पाई बाई 7, दैट इज माइनस 2 पाई बाई 7 विच इज द सेम एज 2 पाई बाई 7। एक आएगा यहां से 2 पाई बाई 7 और माइनस क्या आएगा, माइनस कॉस how much is this, पाई प्लस 3 पाई, दैट इज 4 पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7। अच्छा, फिर यहां से कितना आएगा, 2 साइन पाई बाई 7 साइन 2 पाई बाई 7, यहां से यहां तक ये क्या आएगा, कॉस पाई बाई 7, सिमिलरली पाई बाई 7 minus pi by 7, so that's simply pi by 7 minus 2 pi by 7 basically, so that's simply minus 2 pi by 7 minus pi by 7, so you're getting minus, वो नहीं रहेगा क्योंकि cos था, cos of minus theta is cos theta, so you're getting cos of pi by 7, ठीक है, cos of pi by 7 and minus cos यहां से कितना आएगा, pi plus 2 pi, that is 3 pi by 7, ये आएगा ना। अच्छा, तो और क्या देखो, 2 पाई बाई 7 ये आ गया, 2 पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7, पाई बाई 7 एंड कॉस 3 पाई बाई 7। अच्छा, एक चीज देखो, cos 3 पाई बाई 7 और cos 4 पाई बाई 7, कैन आई से cos 4 पाई बाई 7 इज नथिंग बट cos पाई माइनस पाई बाई 7, ये 4 पाई बाई 7 है ना, 4 पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7, व्हाट इज 4 पाई बाई 7, पाई माइनस पाई बाई 7, राइट, ये तो आ गया पाई माइनस पाई बाई 7, एक तो पाई माइनस थीटा फिर कॉस है, तो ग्रेजुअली दिस विल कम टू द सेकंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या इज दिस क्लियर टू यू, जल्दी से बोलो, ये क्लियर है, ओके। cos 4 पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7 मींस पाई माइनस पाई बाई 7, तो पाई माइनस पाई बाई 7 मींस सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, अगर प्लस हो गया तो प्लस cos 3 पाई बाई 7 होगा एंड प्लस cos 3 पाई बाई 7 एंड माइनस cos 3 पाई बाई 7 कैंसिल आउट, ठीक है। व्हाट एल्स यहां से देखो, ये आएगा आपका cos 5 पाई बाई 7, दिस इज गिवन cos 5 पाई बाई 7, अच्छा, cos 5 pi by 7 and here we have cos 2 pi by 7. Cos 2 pi by 7 means pi minus 5 pi by 7. I'm sorry, pi minus 5 pi by 7. इसको ऐसे लिख दो pi minus 5 pi by 7, नहीं तो इसको ऐसे लिख दो pi minus 2 pi by 7, pi minus pi by 7, pi minus 5 pi by 7, और write this to be pi minus 2 pi. किसी एक को चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, cos 2 pi by 7 is what, cos pi minus 5 pi by 7, फिर ये माइनस आ जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो दिस विल बिकम cos pi by 7 minus cos 5 pi by 7, so both sides will be equal, तो hence proof, ये दोनों साइड इक्वल है, तो which means this inequality, this equality is true, if this is true so this is also true.
ये वाला भी होल्ड करेगा। बोलो क्लियर है? फाइन, लिख लो इसको। इसके लिए आपको अगर देखा जाए तो इसके लिए मतलब पार्ट ए यू विल गेट एग्जैक्टली 1 मार्क्स, क्योंकि 1 और 2 मार्क्स, मैक्सिमम 2 मार्क्स। द मेजर पार्ट एक्चुअली लाइज इन पार्ट बी। इसको आपको इसको लेके आपको प्रूफ करना है बी को। द मेजर मार्क्स कैरीज पार्ट बी। ठीक है, पार्ट 1 अगर समझ में आ गया तो बोलो, फिर पार्ट बी में जाएंगे, जल्दी से बोलो। क्लियर है? चले आगे पार्ट बी पे चले। Come down to part B. Using A or otherwise. Normally, when this is mentioned, means we have to use this thing only. Using A or otherwise, show that 1 by AG is equal to 1 by AF plus 1 by AE. 1 by AG, AG means AG is this, AG is equal to 1 by AF diagonal. ठीक है, plus 1 by AE और एक diagonal. तो AG, what is the length of AG? मान लो ये A0 है, this is A0 and this is A1. So what is AG? What is AG? AG will be how much? 2r sin pi by 7. क्या था? 2r sin pi by n था ना? सिंपली pi by n था, सिंपल pi by n था। pi by 7 होगा, क्यों? बिकॉज इट्स एन हेप्टागन, पॉलीगन ऑफ 7 साइड। सो n is equal to 7 in this case. n is equal to 7. ये क्लियर है कि नहीं? A0 A1 वही पहले वाला जो फर्स्ट केस, A0 A1 is 2r sin pi by n, 2r sin pi by n, clear है? 2r sin pi by n, तो n is 7 in this case, so we have 2r sin pi by 7. तो ये n नहीं आएगा, ये 7 आएगा, n नहीं आएगा, आपका 7 आएगा। ठीक है, अच्छा लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, ये वाला डायगोनल देखो AF, हाउ मच इज दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल? 2r आएगा, साइन भी आएगा, अंदर क्या आएगा? बीच में कितना साइड्स है? हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन बिटवीन? 1 2, 2 पाई बाई 7। ये क्लियर है? 2r साइन 2 पाई बाई 7। ठीक है, और फिर ये वाला डायगोनल का लेंथ 1 2 3, बीच में कितना साइड? 3 साइड, 3 साइड्स आर देयर, तो ये वाला लेंथ कितना आएगा? 2r साइन 3 पाई बाई 7, मतलब 3 पाई बाई n था, सो n is 7 in this case. n is 7 क्योंकि हेप्टागन है, it's a heptagon of 7 sides, 7 sides are there, which means n is 7. Simple logic as that. ठीक है, now put these values in this relation. 1 by AG, 1 by AG is equal to 1 by AF plus 1 by AE, 1 by AE. Put all these values. What is 1 by AG? AG is how much? 2r sin pi by 7 is equal to 1 by AF, 2r sin 2 pi by 7. और आएगा ऊपर से ये 1 by AE, AE is basically 1 by 2r sin 3 pi by 7. 2r कॉमन ले लो, कट जाएगा, 1 by 2r कॉमन ले लो, कट जाएगा, you will get this first relation only. So hence proved. वन बाई 2r कॉमन ले लो, हर एक जगह से कट जाएगा। बोलो क्लियर है? And this to just now we have proved. Hence proof which is true by 1 by A. Using A बोला है ना, using A we have proved this thing. ये तो just now we have proved that this is true actually, this is holding. Clear है? Okay. Absolutely yes, this is the case. यही मैं बोलने वाला था, तुमने क्वेश्चन पूछ दिया। Here I am not showing because I have shown you the derivation already. Because this is a subjective paper. ऐसे अगर करोगे तो पूरा 0 दे देगा सेकंड पे।
फर्स्ट वाले पे मार्क्स देगा लेकिन सेकंड वाले पे 0 दे देगा। क्यों 0 दे देगा? बिकॉज द थिंग इज वेयर आर यू गेटिंग दिस फ्रॉम? ये तो कहीं भी दिया नहीं जाएगा। 2r sin pi by 7, वेयर आर यू गेटिंग दिस ऑल दीज वैल्यूज? 2r pi sin pi by 7, 2r sin 2 pi by 7, 2r sin 3 pi by 7। so what you have to do in general for n polygons, ये वाला प्रूफ आपको पूरा दिखाना है, ये वाला प्रूफ आपको पूरा दिखाना है, दिस प्रूफ, ये जितना भी हमने किया, this entire thing you have to show one by one, length of how you are getting the length of diagonals to be regular in a regular polygon, ये चीज आपको दिखाना है। so that's why I stress on proofs also, ये proof आपको दिखाना है how you are getting this thing, then only you can actually get the full marks, otherwise ये कहां से आएगा? means basically the proof is important just to find out this thing। ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ आपको, ये लेंथ कहां से आएगा? आपको कहां से मिल रहा है ये लेंथ? how you are getting this thing? so this is what you need to find out। ठीक है, ये प्रूफ पहले आप लिखोगे, फर्स्ट यू विल राइट डाउन द प्रूफ। ठीक है, फर्स्ट यू विल राइट डाउन द प्रूफ हाउ यू आर फाइंडिंग आउट दिस लेंथ्स एक्चुअली, वो प्रूफ लिखोगे, फिर लिखोगे हियर वी हैव n इज इक्वल टू 7, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग AG इज दिस, AF इज दिस एंड AE विल बी दिस। ठीक है, because it's a heptagon, so n is equal to number of sides is 7 in this case, so replace n by 7 and you're getting these values। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Got the idea how you're going to write this in the examination in the ISI entrance if any question of this type polygon is asked? बहुत पहले पूछा गया था 2010 में, so there is a probability that you can get actually this year polygon based question, मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं दिया जाता, मतलब कुछ घुमा घुमा के दिया जाएगा। तो बाकी सबको क्लियर हो गया? आपको क्या करना है? you have to show the proof, you have to show the proof that how you are getting the, how you are finding the diagonals, length of side and diagonals। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड तो सेम रहेंगे, इट्स अ रेगुलर हेप्टागन, 7 इक्वल साइड। ये अगर 2r sin pi by 7 हो तो ये भी 2r sin pi by 7, ये साइड्स हो गया। फिर साइड का तो ठीक है भाई, साइड आपको मिल जाएगा, साइड इज फाइन, यू कैन फाइंड आउट साइड्स फ्रॉम हियर, बट दैट जनरल फॉर्मूला यू नीड टू शो। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम, नॉट ओनली फॉर ISI CMI, एनी टाइप ऑफ सब्जेक्टिव एग्जाम, ये कहीं भी आप डायरेक्टली आप यू कैन नॉट यूज दिस थिंग, वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A1, A2, A3 and so on up to AN are the vertices of the n-sided regular polygon such that 1 upon A1, A2 is equal to 1 upon A1, A3 is equal plus 1 upon A1, A4. You find out the value of n. Find out the value of n. So this was a JEE Advanced previous year question and numerical answer based question. Numerical answer based question. ठीक है, बड़ा ही simple question है। 1 upon A1, A2, simply put these values, 1 upon A1, A2, A1, A2 means difference is how much? 1, तो क्या होगा इस पे? 2r sin pi by n, 2r sin pi by n is equal to 1 upon 2r, ये क्या होगा? difference is 2, so 2r sin 2 pi by n, n-sided polygon बोला है, so this is 2r sin 3 pi by n, 1 and 4 है, so difference is 3, तो 2r सब जगह से कट जाएगा, so this will become 1 upon sin pi by n is equal to 1 upon sin 3 pi by n, नहीं 2 pi by n plus 1 upon sin 3 pi by n. Isn't this a similar question what we have done right now? Only the value was, ये value 7 था, सिर्फ वहां पे सिर्फ 7 था, प्रीवियस क्वेश्चन पे 7 था, तो यहाँ पे सिर्फ n दिया हुआ है, isn't it? Only n is given। ठीक है, तो और एक मेथड है, इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स प्रूव दिस। यू कैन यूज द यू कैन सॉल्व द सेम प्रीवियस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस वन मोर मेथड। सेकंड मेथड से देख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। व्हाट यू कैन डू इज ओवर हियर इन द प्रीवियस क्वेश्चन you had only pi by 7 was there. This was the question, same question, वो पार्ट ए वाला, सिर्फ pi by 7 था, n की जगह 7 था, ठीक है ना, n की जगह 7 था। तो यहां पे देखो, one more way to solve this।
Take this on the left hand side, take this term on the left hand side. So we have 1 by sine pi by n, minus 1 by sine 3 pi by n is equal to 1 by sine 2 pi by n. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया इसको. अच्छा, फिर क्या करो, एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई कर दो. एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा, साइन 3 पाई बाई एन, साइन 3 पाई बाई एन माइनस साइन पाई बाई एन डिवाइडेड बाई साइन 3 पाई बाई एन इंटू साइन पाई बाई एन. ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई साइन 2 पाई बाई एन. अब यही से मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, मैनिपुलेशन, सिंपल मैनिपुलेशन. अच्छा, यहां से एक चीज देख लो, यहां से साइन 2 पाई बाई एन इसको ऐसे लिख दो, साइन 2 पाई बाई एन माने साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. साइन 2 पाई बाई एन इसको ऐसे लिख दिया, साइन 2 पाई बाई एन इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो साइन पाई बाई एन एंड साइन पाई बाई एन कैंसल आउट फ्रॉम हियर इन द डिनोमिनेटर. तो व्हाट इज लेफ्ट आउट, फिर साइन सी माइनस साइन डी यूज कर दो, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी बोलो तो कॉस एंड साइन, कॉस एंड साइन 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, है कि नहीं. कॉस सी प्लस डी बाई 2, 3 प्लस 1 4 पाई बाई 4 पाई बाई एन डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4 बाई 2 पाई बाई एन होगा, है ना. 2 कॉस 2 पाई बाई एन, और यहां पे क्या आएगा, साइन सी माइनस डी 3 पाई बाई एन माइनस पाई बाई एन, that is 2 pi by n, 2 pi by n by 2, that is pi by n divided by sin 3 pi by n, है ना, is equal to, गलती हुआ तो बोलना, कैलकुलेशन खुद करना. आई एम डूइंग द कैलकुलेशन ऑन माय ओन, यू आल्सो डू द कैलकुलेशन ऑन योर ओन. कैलकुलेशन खुद करना, क्योंकि कैलकुलेशन प्रैक्टिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, साइन पाई बाई एन, अब देखो यहां से मिल गया साइन पाई बाई एन एंड साइन पाई बाई एन है, और साइन कॉस 2 पाई बाई एन. ओके, अच्छा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट विल आई गेट फ्रॉम हियर, एक तो साइन पाई बाई एन इज देयर एंड 2 कॉस पाई बाई एन इज देयर, है ना. एक तो ये वाला टर्म साइन पाई बाई एन, और दूसरा ये वाला टर्म 2 कॉस पाई बाई एन. ठीक है, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 cos 2 pi by n is just as it is into this sin pi by n into sin pi by n into 2 sin pi by n into cos pi by n, that is sin 2 theta, है ना. सो sin 2 pi by n बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, sin 3 pi by n, sin 3 pi by n. क्लियर है. ओके, सो व्हाट आई हैव फ्रॉम हियर, ये बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा once again, so that is sin 2 theta, that is sin 4 pi by n, sin 4 pi by n, sin 4 pi by n is equal to, right hand side we are getting sin 3 pi by n. Okay, so what are we getting from here, so sin 4 pi by n is equal to sin 3 pi by n, so clearly that is only possible for n is equal to 7, that is only possible if n is equal to 7. You can clearly see from here, that's the same problem just now we have done. यही से तो आप बोल सकते थे, यही से आप बोल सकते थे, अगर वो वाला एक्सप्रेशन प्रीवियस प्रॉब्लम तो वी हैव डन ना, तो यही तो था प्रॉब्लम में, यही तो एक्सप्रेशन था, ये तो n इज इक्वल टू 7 के लिए ट्रू था. नहीं तो यही से आप देख लो, sin 4 pi by n इज इक्वल टू sin 3 pi by n, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ n इज इक्वल टू 7, है ना. नहीं तो इसको ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो ना, और भी आसान कर देता हूं, ऐसे समझ लो, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन 4 pi माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, सॉरी, साइन पाई माइनस थीटा. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 पाई ये जो होगा ना, यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज इन द प्लेस ऑफ दिस थिंग, इन द प्लेस ऑफ दिस इज गिवन 4 पाई बाई एन इज इक्वल टू दिस. यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज बेसिकली 4 पाई बाई एन, थीटा इज 4 पाई बाई एन एंड पाई माइनस थीटा इज हाउ मच, पाई माइनस थीटा इज 3 पाई बाई एन. ठीक है, इस रिलेशन से कंपेयर किया जाए तो यहां से ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो थीटा एंड थीटा माइनस थीटा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट इज रिमेनिंग, पाई, मतलब पाई इज इक्वल टू 4 पाई बाई एन प्लस 3 पाई बाई एन, दैट इज 7 पाई बाई एन. ठीक है,
और फिर यहाँ से पाई एंड पाई कैंसिल आउट हो गया तो n इज इक्वल टू 7 रह गया। नहीं तो यहाँ से दिख रहा है, आपको तो दिख रहा है ना, n इज इक्वल टू 7, फॉर n इज इक्वल टू 7 दिस इज एक्चुअली गेटिंग ट्रू। यही वाला सेम प्रॉब्लम तभी किया आपने, मतलब सेम नहीं, सिमिलर प्रॉब्लम, एक्चुअली यही चीज था आपके पास, वो एक्सप्रेशन पे आपको दिया गया था, यही वाला चीज आपको दिया गया था। ठीक है ना, क्लियर? एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, टेक दिस क्वेश्चन डाउन फॉर योर होमवर्क, एक क्वेश्चन लिख लो। हाँ तो देखो क्वेश्चन देखो, ये खुद ट्राई करना एक बार। अच्छा, if IN is the area of the n-sided polygon inscribed in the circle of unit radius and ON be the area of the polygon circumscribed in the given circle, you have to prove that IN is equal to ON by 2 times 1 plus square root 1 minus 2 times IN divided by n whole square। इसी पे मतलब आपको एरिया पे खेलना है, ठीक है, एरिया यू हैव टू फोकस ऑन। अच्छा, एरिया का तो फॉर्मूला मैंने नहीं बोला, एरिया आई थिंक आई हैवंट सेड द फॉर्मूला, मैंने बोला है क्या फर्स्ट में? एरिया ऑफ द पॉलीगन, somewhere over here I am explaining area of polygon, just space छोड़ दो सम के लिए, ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब हाफ पेज छोड़ दो सम के लिए, वो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट लीव अराउंड हाफ और 1 पेज, फुल पेज आप छोड़ दो, फुल पेज छोड़ दो, फुल पेज छोड़ दो, वो सम के लिए आप फुल पेज छोड़ दो, ठीक है। और देखो एरिया ऑफ पॉलीगन, सिंपल फॉर्मूला है, कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस इन दिस फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला देखो, एरिया ऑफ द पॉलीगन, ये कुछ पॉलीगन है आपके पास, ओके, आई वांट द एरिया ऑफ दिस पॉलीगन, तो ये हमें पता है कि ये वाला अगर आर है तो ये भी आर है, ठीक है, ये आर है तो ये भी आर है, तो ये थीटा है, व्हाट इज थीटा? 2 पाई बाई एन, थीटा इज व्हाट? 2 पाई बाई एन, ठीक है। तो वही ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है ना, ट्राइंगल का कंसेप्ट से अगर देखा जाए, ट्राइंगल का कंसेप्ट से देखो, ये वाला एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, मान लो ओ है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी विल बी हाफ बीसी साइन ए, और मान लो हाफ ये वाला साइड का प्रोडक्ट, ये अगर आ रहे हैं तो ये भी आ रहे हैं ना, तो हाफ बीसी और बीच वाला एंगल, साइन बीच वाला एंगल, तो हाफ बीसी क्या होगा? बीसी आर इंटू साइन ए, आर इंटू व्हाट? साइन बीच वाला एंगल, साइन 2 पाई बाई एन, ठीक है ना, क्लियर है? मतलब आर स्क्वायर बाई टू साइन 2 पाई बाई एन, ये तो आ गया ट्राइंगल का एरिया। तो ऐसे कितना ट्राइंगल्स होगा? ऐसे टोटल देयर विल बी n such triangles, total there will be n such triangles, so for n such triangles how many what is the area of this full full polygon, basically n times this area, n times this area, है ना। तो area of the regular polygon you will get from here, area of regular polygon, मतलब जितना साइड्स होगा पॉलीगन का उतने ही ट्राइंगल्स बनेंगे। सब ट्राइंगल्स का, if you find out the area of each and every triangle, if you find out the area of each and every triangle, then you will get the area of the total polygon। मान लो अगर इरेगुलर पॉलीगन दे दिया, ये तो रेगुलर पॉलीगन था, इरेगुलर पॉलीगन में तो सब ट्राइंगल सेम नहीं होंगे, सबका डिफरेंट डिफरेंट एरिया जाएगा, तब क्या करोगे? यू जस्ट सिंपली क्रिएट द ट्राइंगल, यू जस्ट क्रिएट द द पॉलीगन एंड सी द ट्राइंगल्स, उसका एरिया फाइंड करो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो कंडीशन आपको दिया जाएगा, उस तरीके से आपको सोचना है, वो कंडीशन आपको दिया जाता है। सो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन विल बी हाउ मच? n टाइम्स r स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 2 पाई बाई एन, बस यही है एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, n टाइम्स r स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, एंड थीटा इज 2 पाई बाई एन, दैट इज द सेंट्रल एंगल, बस यही फॉर्मूला है, क्लियर है? हो गया बस। दिस इज द एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगन फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है, आप झोले पे ऐड कर लो, ये फॉर्मूला का झोला है, that's all. Now you can go with that question, now you can proceed with that question।